ਮਾਨਸੀ ਦੇ ਸਭ ਜਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨੰਦਤ ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰੀਏ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਨਿਖਰ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਜਾਂਚਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ हे ਯਹੋਵਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਨਿਖਰ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਾਂ, ਤੇਰੇ वचन के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करा। यहोवा परमेश्वर, इज़राइल के पवित्र परमेश्वर, मेरी अगुवाई कर, मेरी मदद कर। यहोवा के नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। आज दा यहोवा दा वचन है कि चिट्टे बस्तर पहनण नाल कोई मनुख साफ नहीं हो जाता। अपने अंदरूनी रूप नूं निखारीए। हुण अंदरूनी रूप किस तरह निखर सकता है इंसान का? बाहरी रूप में तो मनुख सवार लेंदे आ, नवे कपड़े पहन लेंदे आ, अपना सिर वाह लेंदे आ, पर अंदरूनी रूप नो किस तरह निखार सकता है मनुख? एक बहुत वड्डी गल है। बाहरों का सब शुद्ध दिखते हैं, पर अंदरों कोई कोई शुद्ध होता है। वो अंदरूनी रूप जिसनों यहोवा जांचदा है, यहोवा देखता है। यहोवा बाहरी रूप नहीं देखता इंसान का, वो अंदरूनी रूप देखता, वो दिल नूं जांचता है कि वो कितना अंदरों शुद्ध है। हालेलुया। सो आज का यहोवा का वचन यही आ कि जो मनुख चिट्टे वस्त्र पहन लेंगे, वो कहते कि हाँ वो साफ हो गए आ, उन्होंने चिट्टे वस्त्र पहन ले आ, पर अंदरूनी रूप, अपने अंदरूनी रूप नूं निखारिए, जिसनों यहोवा जांचदा अंदरूनी रूप नूं। हुण अंदरूनी रूप नूं कोई मनुख किस तरह निखार सकता है? कि 2 बारी साबन लाउण नाल जां 3 बारी साबन लाउण नाल, भावें 5 बारी भी कोई मनुख साबन ला के नहा ले, पर फिर भी वो अपने अंदरूनी रूप नूं नहीं निखार सकता। ना किसी साबन दे नाल, ना किसी कपड़ियां दे नाल, ना चिट्टे वस्त्र दे नाल, ना चिट्टे वस्त्र नूं पहनण दे नाल, ना घड़ी घड़ी नहाउण दे नाल। कोई मनुख अपने अंदरूनी रूप नूं संसारिक वस्तुओं दे नाल नहीं निखार सकता। फिर किस तरह निखार सकता है मनुख अपने अंदरूनी रूप नूं? एक है आत्मिक चीज जिस दे नाल मनुख अपने अंदरूनी रूप नूं निखार सकता है, उन्हें सवार सकता, उन्हें शुद्ध कर सकता है। वो है दीनता। दीनता दे नाल मनुख अपने अंदरूनी रूप नूं शुद्ध कर सकता है, निखार सकता है। अधीनता, हुण ये अधीनता की हुंदी है? अधीनता ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ।
ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਧੀਨਤਾ, ਦੀਨਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਨ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਦੀਨ ਆ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਖਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਆ, ਦੇਖਦਾ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆ। ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਧੀਨਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਅਧੀਨਤਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਧੀਨਤਾ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਰਾਜਾ, ਅਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਰਾਜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਲਕਾ ਵਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਸਦੀ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਮਲਕਾ ਵਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਮਲਕਾ ਵਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਲਕਾ ਵਸ਼ਤੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਲਕਾ ਵਸ਼ਤੀ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਸਵਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। 12 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਵਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਲਕਾ ਵਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਅਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ, ਅਸਤਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਲਕਾ ਵਸ਼ਤੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀਨ ਨਹੀਂ
सी ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕਾ ਵਸ਼ਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨਿਖਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 12 ਮਹੀਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜਾ ਦੇ, ਅਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮਲਕਾ ਵਸ਼ਤੀ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਰ ਸੀਗਾ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। हालेलुया। दूसरे पासे अस्तर जो एक नॉर्मल लड़की सी, जो एक नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਅਸਤਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸਤਰ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ। अस्तर जो एक नॉर्मल लड़की सी, नगर ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, तो अधीनता के कारण वो रानी बन बैठी शूशन महल दी। सिर्फ अधीनता के कारण। क्यों? जो वो बाहरों भी शुद्ध सी पर अंदरों भी शुद्ध सी, निखरी हुई सी। एस्थर किस तरह निखरी हुई सी? यहोवा दे अधीन रह के निखरी हुई सी। ओहदा अंदरूनी रूप जिहड़ा वो शुद्ध सीगा। यहोवा दा डर सी एस्थर दे उत्ते। ओ अधीन रहंदी सी यहोवा दे। अधीनता के कारण एस्थर जो एक नॉर्मल लड़की सी, नगर विच रहंदी, वो रानी बन गई अधीनता के कारण। किसने बनाया उन्हें रानी? यहोवा ने बनाया उन्हें रानी। क्यों? जो यहोवा दे अधीन रहंदी सी। हालेलुया, हालेलुया। ते ओदा पिता मर गई, वो भी यहूदी सी, वो यहोवा दा डर रखदा सी, यहोवा दे अधीन रहंदा सी। वो सिर्फ अधीनता के कारण एस्थर सारे शूशन महल की रानी बन गई। सिर्फ अधीनता के कारण, यहोवा के अधीन रहने के कारण उच्ची की गई, और उच्ची पदवी मिल गई। हालेलुया। जदों एस्थर रानी बन गई सारे शूशन महल की, जिहड़ा उसदा पिता सी मर्द गई, और राज दे दरबार दे सामने बैठा रहंदा हुंदा सीगा। ते एस्थर महल दे अंदर हुंदी सी, शूशन महल दे अंदर हुंदी सी। ते राजा अश्वेरोश दा सरदार जिहड़ा सीगा, हमान सरदार जिहड़ा सीगा,
उस उच्ची पदवी दी हुई राजा ने कि जो यह बाहर जावे हमान उसका सरदार तो सारे लोग ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ अपना सिर झुकाउण। पर एस्थर का जो पिता सीगा मर्दकई जो कि एस्थर का असली पिता नहीं सी बल्कि मर्दकई ने ਉਹਦੇ चाचा ਦੇ ਕੋਲੋਂ एस्थर ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। हालेलुया। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਕਈ ਸੀਗਾ ਐਸਥਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਰਦਕਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਜੈਲਸ ਹੋਇਆ ਮਰਦਕਈ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ सरदार हमान दे अगे अपना सिर नहीं निभाउंदा, नहीं नीवा हुंदा। और गुस्से होने लग्या उसके नाल। हमान ने सोचा कि मैं मर्दकई दे कोलों ते इसदे लोकां दे कोलों यहूदी लोकां दे कोलों बदला लवां क्यों जिन्हें मेरे अगे सिर नहीं निभाया। ते हमान सरदार ने की किया, उसने राजा अश्वेरोश के कोलों झूठ बोल के ये आज्ञा ले ली सारे यहूदी लोगों को मरवाउण दी, उन्होंने खत्म करन दी सिर्फ गुस्से दे कारण। ते जदों मर्दकई नूं पता लग्या कि उसके सारे यहूदी लोग मार दिते जाण वाले आ ते मर्दकई एस्थर दा पिता एस्थर दे कोल दौड़ के गया। उसने क्या एस्थर नो तू चंगी रानी बनन लगी है सूशन महल दी, हुण तां अपने सारे लोग जिहड़े आ वो मार दिते जाण वाले आ। राजा ने हुक्म कीता आ तू तां रानी बन गई पर सारे लोग जिहड़े आ अपने वो मार दिते जाण वाले आ। राजा ने हुक्म कीता आ। एस्थर ने की किया? एस्थर ने क्या मैं उठांगी अपने लोगों के वास्ते, मैं उठदी हां, मैं उठांगी अपने लोगों के वास्ते, उन्हें बचाने के वास्ते, उन्हें मौत से बचाने के वास्ते। उन्हें कहा मैं उठूंगी, मैं उठांगी अपने लोगों को बचाने के वास्ते। एस्थर ने उसने क्या मैं जावांगी राजा दे अगे, राजा नाल गलबात करने के वास्ते, अपने लोगों को छुड़ाने के वास्ते। उसने क्या मैं उठांगी, उसने क्या मैं जावांगी। उसने क्या मैं जावांगी अपने लोगों को छुड़ाने के वास्ते, बचाने के वास्ते। एस्थर ने क्या मर्दकई नूं कि जा अपने लोगों नूं सबना यहूदी लोगों नूं जाके दस कि 3 दिन 3 रात दा व्रत रखन, ना कुछ खाण ना कुछ पीण। उन्हें कहा मैं भी मैं ते मेरी सहेलियां भी ऐसे तरह करनगियां, असि भी 3 दिन 3 रात ना कुछ खावांगे ना कुछ पीवांगे। एस्थर ने क्या सब लोग मेरे वास्ते व्रत रखन। एस्थर ने क्या एस्थर ने की क्या जाओ तो सब लोग मेरे वास्ते व्रत रखो कि मैं जो राजा दे नाल गल करने ले जावां उथों जिंदी वापस आवां। क्यों सुने राजा का हुक्म सीगा कि जो कोई राजा की आज्ञा तो बगैर दरबार में जांदा सी ओ मार दिता जांदा सी। इसलिए जो राजा ही
बुलाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਸਥਰ ਉੱਠੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਠਾਂਗੀ। जबकि एस्थर नूं पता आ कि हुण राजा ने तो उन्होंने नहीं सद्या, उन्होंने आप जाना पैना अपने लोगों के वास्ते राजा दे अगे। हो सकता राजा उसको मार दे क्यों जो बिल बुलाए जा रही है। एस्थर ने की कि अपने लोगों नूं तुसीं मेरे वास्ते वर्त रखो, तीन रात का वर्त रखो, ना कुछ खाओ तो ना कुछ पियो। एस्थर ने उहदे सहेलियां ने इसे तरह किया, उहदे लोकां ने भी इसे तरह किया, वर्त रखे। उहदे पिता मार्दके ने भी इसे तरह किया। तीजे दिन एस्थर राजा दे कोल गई महल दे विच। जदों राजा ने एस्थर नूं वेख्या की होया, फिर जदों राजा ने एस्थर नूं देखा तो एस्थर ने राजा दी नज़रां दे विच दया पाई। हालेलुया, उसने दया पाई। राजा ने उसको मारा नहीं बल्कि उसने पूछा कि तू की गल करना मांगदिया, की कहना मांगदिया, तू किस वास्ते इत्थे आई आ। तो उसने कहा कि मैं अपने लोकां दे वास्ते इत्थे आई हां। एस्थर ने राजा नूं कहा कि मेरे लोकां नूं मार दिता जा रहा है बाहर, तुहाडे द्वारा ही आज्ञा हुई है। एस्थर ने कहा राजा नूं कि तुहाडे द्वारा ही आज्ञा हुई है कि मेरे सब यहूदी लोग बाहर मार दिते जाण। उन्हें कहा मैं ते मेरे लोकां नूं मार दिते जाण दा हुक्म हो गया आ। उन्हें कहा असीं मारे जा रहे हैं, मैं ते मेरे लोग। राजा ने की क्या, किसने किया है, कौन करन जा रहा है। राजा नूं नहीं सी पता इस गल दा कि जिस लोकां दे वास्ते राजा ने हुक्म किया है और उसकी रानी एस्थर के उहदे लोग क्या, यहूदी लोग क्या। तो जब एस्थर ने दस्या कि यह तुहाडे सरदार हामान ने किया, राजा ने उसने बुलाया, उसने पूछा तो उसने सजा दी गई हामान नूं, सरदार नूं। हालेलुया, ते राजा ने जो हुक्म किया सीगा यहूदी लोकां नूं मारन दा ओह हटा दिता गया। हालेलुया, ये किस तरह होया, क्यों जो एस्थर जड़ी सी यहोवा दे अधीन रहंदी सी। जब एस्थर नूं पता लग गया कि उहदे लोकां नूं मार दिता जाण वाला है तो की कीता एस्थर ने। एस्थर ने कहा मैं राजा दे कोल जावांगी, पर राजा दे कोल जाण तो पहले एस्थर ने की कीता, एस्थर यहोवा दे अगे गई, यहोवा दे अधीन होई। राजा दे कोल जाण तो पहले एस्थर यहोवा दे कोल गई, यहोवा दे अधीन होई। यहोवा दे अगे भुखी ते प्यासी रही 3 दिन 3 रात। यहोवा तो दया मंगी, यहोवा दे अधीन होई। क्यों जो यहोवा दा डर रखदी सी। हालेलुया, और अधीनता के कारण यहोवा ने उन्होंने दया दी राजा दी नज़रां दे विच। यहोवा ने ही राजा नूं आज्ञा दी दया करने दे वास्ते एस्थर दे उत्ते। यहोवा ने ही राजा दे दिल नूं, ऐश्वर्यवश राजा दे दिल नूं बदल दिता कि वह एस्थर नूं ओदी गल नूं सुने और इसे दया करे। हालेलुया, यहोवा दे अगे अधीन होने के कारण एस्थर ने अपने लोगों को मौत तो बचा लिया।
लिया। हालेलुया। क्यों जो ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। और राजा दे भी अधीन होके रही ते यहोवा दे सब तो पहला ਉਹ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, हमेशा ही अधीन रहती सी ते यहोवा ਦਾ डर ਰੱਖਦੀ ਸੀ। यहोवा दे अधीन रहने के कारण ही एस्तर ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ गई, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ पदवी मिली और रानी बनाई गई और ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ गई सिर्फ अधीनता के कारण। क्यों जोड़ा मन ਉਹਦਾ दिल दीन सीगा। हालेलुया। ते सरदार अश्वेरोश राजा दे सरदार हामान ने जो जुगता घड़ियां सीगा, जो चालां घड़ियां होईयां सीगा मारदकई नूं ते लोकां नूं मारन दे वास्ते, ਉਹ आप ही उन्हां चालां दे विच फस गया। हालेलुया। वो आप उन्हां चालां दे विच फस गया। ਜਿਹੜੀ ਸੂਲੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਦਕਾਈ ਨੂੰ ਟੰਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਲੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਦਕਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। सिर्फ जेलस करके, क्यों जो अगे अपना सिर नहीं निभाता सीगा। पर मारदकाई जो सीगा वो यहोवा का डर रखता सी, यहोवा दे ही अधीन रहंदा सीगा, वो मनुक्खां दे अधीन नहीं रहंदा सी और मनुक्खां दा डर नहीं रखदा सी, और सिर्फ यहोवा का डर रखदा सी। हालेलुया। ते एक बारी मारदकाई ने राजा ने दुश्मनों तो बचाया सी। जो लोग राजा दे अश्वेरोश के खिलाफ सीगे, मारदकाई ने उन्हां लोकां दे बारे राजा नूं उहदे सरदारां नूं दस्सिया सी ते राजा ने बचाया सीगा। पर उसदी इस भलाई दा उसनूं कोई इनाम नहीं दिता गया सी। उहदे सरदारां ने हामान ने इस गल दा लुको रखिया सीगा राजा अश्वेरोश दे कोलों। पर यह जिहड़ी गल सी उहदी भलाई दी गल सीगी, इह इतिहासक पुस्तक दे विच लिखी जा चुकी सी, जो राजा दे कोल हुंदी सीगी। सिर्फ उहदे सरदार हामान ने यह गल राजा नूं नहीं दसी सी, क्यों जो उहदे कोलों जेलस करदा सीगा। उहदे नाल ओह गुस्से सीगा, क्यों जो उहदे अगे सिर नहीं निभाउंदा सीगा। ते जदों राजा ने वो इतिहासक पुस्तक देखी, उस पुस्तक दे विच मारदकाई दी भलाई लिखी हुई सी, जो उसने राजा दे लिए की। हालेलुया। जदों राजा नूं पता लग्या कि मारदकाई ने उसदी जान बचाई आ, ये भलाई कीती आ, तां उसने ओनूं उच्ची पदवी दित्ती, मारदकाई नूं इनाम दिता, ओनूं चंगी पोशाक पहनाई, तां ओनूं घोड़े ते बैठा के सारे शूशन महल के आले दुआले सारे नगर दे विच उसनूं इज्जत मान दिता। ते जो सरदार हामान सीगा, उसनूं ही राजा ने हुक्म दिता कि तू ही इसनूं मारदकाई नूं चंगी पोशाक पहना के घोड़े ते सवार करके इसनूं सारे नगर दे विच घुमा फिरा। हालेलुया। देखो, जो हामान जो मारदकाई नूं मारना मंगदा आ, ओह ही हुण उसनूं सवारी करवा रहा आ, घोड़े ते बिठा के सवारी करवा रहा उसनूं। ते मारदकाई दा हामान दुश्मन आ, जो उहनूं मारना मंगदा, उहदी मौत नूं, जो उहदी मौत करना मंगदा आ, मारदकाई नूं मारना मंगदा आ। हुण ओही हामान
ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? किस तरह ये पासा पलट गया? ए यहोवा ने कीता, ए यहोवा ने कीता क्यों जो मॉर्दकै यहोवा दे अगे अधीन रहंदा सीगा, यहोवा दा डर रखदा सीगा, ओदे अगे अधीन रहंदा सीगा। हालेलुया। ते हामान ने जो चाला कड़ियां सीगियां वो आप ही उन्हां विच फस गया ते उन्हें सजा दी गई। इस नालों बहुत खिंच गया तो उन्हें सूली ते टंगिया गया राजा दे हुक्म दे द्वारा हामान नूं ते मॉर्दकै नूं उच्ची पदवी दी गई। हालेलुया। क्यों जो मॉर्दकै ने एक भला काम कीता सी, सिर्फ एक भला काम, राजा की जान ने बचाया सी उसने। जो दा एक भला काम इतिहासक पुस्तक दे विच लिखिया जा चुका सीगा। जदों राजे ने पता लग्या तो उसने उन्होंने उच्ची पदवी दी, इनाम दिता। हालेलुया। मॉर्दकै अपनी अधीनता के कारण, दीनता के कारण उच्चा किया गया और दुश्मनों तो छुड़ाया गया, मौत तो बचाया गया। मॉर्दकै अपने दुश्मन हामान तो बचाया गया ते उच्चा किया गया। हालेलुया। किस तरह? सिर्फ अधीनता के कारण, क्यों जो दीन सीगा। हालेलुया। 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 मॉर्दकै अपने एक भले काम के कारण उच्चा किया गया और उच्ची पदवी दी गई। अज तुहाडा कीता होया एक भला काम, अज तुहाडा कीता होया एक भला काम तुहानू वड्डे दुख तो छुड़ा सकदा है। हालेलुया। अज तुहाडा एक भला कीता होया काम तुहानू वड्डे दुख तो छुड़ा सकदा है। जिस तरह मॉर्दकै ने एक भले काम के कारण, जिस तरह मॉर्दकै दे एक भले काम के कारण ओदे लोग छुड़ाए गए मौत तो, ओदे सब यहूदी लोग जिन्होंने मारन का हुक्म हो गया सी, वो छुड़ाए गए मॉर्दकै दे एक भले काम के कारण। हालेलुया। हालेलुया। जदों कोई मनुख यहोवा दे विश्वास रखदा है तो फिर ओदे दुश्मन भी ओदी सेवा करदे आ। जिस तरह हामान ने मॉर्दकै दी सेवा की। हालेलुया। हालेलुया। अस्थर, रानी अस्थर जो अपनी दीनता के कारण उच्ची की गई, रानी बनाई गई। इसी तरह जिस औरत ने अपने आप को यहोवा के अगे अधीन किया, वो उच्ची की गई। हालेलुया। ध्यान देना सुनिए, जिस औरत ने अपने आप को यहोवा के अगे अधीन किया वो उच्ची की गई। जिस तरह रूत भी यहोवा के अधीन हुई, उन्हें यहोवा का डर रखा। रूत ने और यहोवा के अधीन हुई रूत ते जिस खेत दे विचों काम करदी सी उस खेत दी ओह मालकन बन गई। किस तरह? यहोवा दे अधीन रहने के कारण, अपनी दीनता के कारण। हालेलुया। हालेलुया। रिबका अपने माता पिता के अधीन रहती सी। रिबका इसहाक की पत्नी, वो अपने माता पिता के अधीन रहती सी ते यहोवा का डर रखती सी ते वो मन तो निखरी हुई सी
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਖਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਬਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਰਿਬਕਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟਾਈ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਕੰਮ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। सब जन अपनी अखां नूं बंद करिए ते प्रार्थना दे विच चलिए। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करदी हां यहोवा, मैं प्रार्थना करदी हां तेरे लोकां दे वास्ते यहोवा परमेश्वर। सब जन अपनी अखां नूं बंद करिए ते मेरे नाल प्रार्थना करिए। प्रार्थना दे विच चलिए, आत्मा तो प्रार्थना करिए। हालेलुया। आत्मा तो प्रार्थना करिए यहोवा दे के कहिए अपने मुंह दे नाल, यहोवा मैं अपने आप में तेरे अधीन करदा हां, तेरे अधीन करदी हां। यहोवा परमेश्वर, मेरे काम जो मैं करा वो तेरी नज़रां दे विच भले होण। यहोवा परमेश्वर कहिए अपने मुंह दे नाल, यहोवा परमेश्वर मेरे काम, मेरे भले, मेरे काम जो मैं भलाई दे लिए करा, यहोवा परमेश्वर मेरे लोकां दे लिए छुटकारे का कारण बन जाण। मेरे लोकां दी आजादी का काम, मेरे लोकां दी आजादी का कारण बन जाण। यहोवा परमेश्वर मेरे भलाई दे काम जो मैं करा, यहोवा परमेश्वर और मेरे लोकां नूं छुड़ाउण, मेरे लोकां नूं आजाद करन, मेरे लोकां दी आजादी का कारण बन जाण, मेरे लोकां दी छुटकारे का कारण बन जाण। यहोवा परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हाँ, तेरे अधीन करती हाँ। यहोवा परमेश्वर आज मेरा कीता होया एक भलाई का काम मेरे लोगों ने दुखों को छुड़ा दे। यहोवा परमेश्वर अपने मुंह के नाल प्रार्थना करिए। यहोवा परमेश्वर मैं तेरे अधीन होकर चला, मैं तेरा डर रखा। यहोवा परमेश्वर
मैं अपने अंदरूनी रूप में निखार लवा यहोवा परमेश्वर तेरे अधीन होके, मेरे यहोवा तेरे अधीन होके प्रार्थना करिए अपने मुंह दे नाल, यहोवा मैं तेरे अधीन होके अपने पति नूं बचा लवा बुरी आदतां तो बुरे कामां तो। कहिए अपने मुंह दे नाल, यहोवा मैं तेरे अधीन होके अपने लोकां नूं बचा लवा, छुड़ा लवा मौत तो, बंधना तो। कहिए अपने मुंह दे नाल प्रार्थना करिए, यहोवा मैं तेरे अधीन होके अपने परिवार नूं, अपने बच्चा नूं छुड़ा लवा नशा तो, बुरी संगति तो, बुरे बंधना तो। कहिए प्रार्थना करिए अपने मुंह दे नाल, यहोवा मैं तेरे अधीन होके अपने परिवार में मैं आजाद कर लवा बुरे बंधना तो, जादू टोणियां तो, अंधकार दी शक्तियां तो, शैतान दी शक्तियां तो मैं आजाद कर पावा अपने परिवार नूं तेरे अधीन होके। प्रार्थना करिए अपने मुंह दे नाल, यहोवा मैं तेरे अधीन होके अपने परिवार नूं, अपने नगर के लोकां नूं मैं बचा लवा, आजाद करा। यहोवा मैं तेरे अधीन होके लोकां नूं मौत तो छुड़ावा, लोकां नूं आजाद करा, बन्ने होया नूं आजाद करा, कैद खाने विच पए लोकां नूं आजाद करा। प्रार्थना करिए अपने मुंह दे नाल कि यहोवा मेरे कीते हुए भले काम मेरे लोकां दी आजादी दा कारण बन जान, मेरे लोकां दे छुटकारे दा काम बन जान। प्रार्थना करिए अपने मुंह दे नाल, यहोवा मैं तेरे अधीन होके अपने आप नूं निखार लवा, अपने अंदरूनी रूप नूं निखार लवा। यहोवा मैं शुद्ध हो जावा तेरे अधीन होके, मैं अपने आप नूं तेरे अधीन करदा हां, अधीन करदी हां। यहोवा मैं तेरे अधीन होके अपने परिवार नूं आजाद कर लवा बड़ियां शक्तियां तो, जादू टोणियां तो, बीमारियां तो। यहोवा मैं तेरे अधीन होके अपने पति नूं बुरियां आदतां तो, बुरी संगति तो आजाद कर लवा तेरे अधीन होके। यहोवा परमेश्वर तेरे अधीन होके मैं तेरी दया पावा अपने आप ते, अपने परिवार ते, अपने बच्चों ते, अपने पति ते, अपने नगर ते, अपने लोकां दे उत्ते मैं तेरी दया पावा। यहोवा परमेश्वर तेरे अधीन होके कि जो यहोवा दा वचन या कि जो मन दे अधीन आ यहोवा दी दया नूं प्राप्त कर दिया। हालेलुया। यहोवा दे नाम दे विच मैं प्रार्थना करदी हां कि तुसीं यहोवा दी दया नूं प्राप्त करो अपने जीवन ते, अपने परिवार ते, अपने नगर ते, अपने लोकां ते, अपने पति दे जीवन ते। यहोवा परमेश्वर दे नाम दे विच मैं प्रार्थना करदी हां तुसीं अपनी दीनता दे कारण उच्चे कीते जाओ, उच्ची पदवी प्राप्त करो। तुहाडी दीनता दे कारण तुहाडे लोक छुड़ाए जाण, तुसीं अपनी दीनता दे कारण उच्चे कीते जाओ ते यहोवा दी दया नूं प्राप्त करो अपने जीवन दे उत्ते ते यहोवा तुहाडे उत्ते दया करे ते दीनता दे कारण तुसीं अपने अंदरूनी रूप नूं निखार लवो। यहोवा दे नाम विच मैं प्रार्थना करदी हां कि तुहाडा अंदरूनी रूप शुद्ध हो जावे, निखर जावे तुहाडी दीनता दे कारण। मेरा यहोवा परमेश्वर तुहानू बरकत देवे ते आशीष देवे। अज मेरा तुहाडे लिए प्रार्थना करना तुहाडे सबना दे लिए आशीषां ते बरकतां दा कारण बन जाए। यहोवा दे नाम दे विच मंगदी हां, आमीन।